Hello everyone, welcome to my channel Manikanthan Study Mantra uh, for one more time. Okay, so we have discussed in previous videos up to chapter number 5, Access My Practice Time 2. So today we need to discuss the remaining portion of our this chapter. Okay, so I hope all of you have completed my practice time 2 up to my practice time 2. So let us start with the remaining portion today. As you all know that I am providing online classes on behalf of LUT International Academy, Bokakhat. So let's start without wasting much more time. We just get into this chapter. Okay. Now division of we have to today we have to discuss division of a 2-digit number by a single digit number. Okay, 1-digit number. Division of a 2-digit number by 1-digit number. Okay, we will take any 2-digit number and we will try to divide that 2-digit number by a single digit number. Okay, suppose I am dividing 45 by 5. So 45 is a 2-digit number, and now I am going to divide this 45 by a single digit number, that is 5. Okay, so 5 का टेबल हमें याद करना होगा. पहले 5 से हम इस 4 को डिवाइड, पहले क्या देखना चाहिए, we have to try the first leftmost digit of the 2-digit number by 5. 5 से ये डिवाइड जाएगा क्या? एक्चुअली जाता है, लेकिन हम ऐसे करते नहीं हैं. ओके, but the actual function which is actually happening inside this is what? 5 ones are 5, but that is always greater than 4. 5 is always greater than 4. So I need a value which is less than that 5 ones are 5. Okay, 5 से छोटा होना चाहिए. तो 5 ones are 5 ये तो नहीं हो सकता. So that means I have to go lesser than 1, right? एक से छोटा क्या होता है? 0 होता है ना. So 5 zeros are क्या होता है? 0. सॉरी, इट्स माई मिस्टेक. ओके, अगेन बार बार वही दिक्कत हो रहा है. कोई बात नहीं. 5 zeros are 0. नाउ यू हैव टू माइनस इट. हाउ मच यू विल गेट? 4. ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये 45 बनेगा. राइट, नाउ फिर से हमें क्या करना है? 5 का टेबल गाना है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45. और हमें 45 चाहिए, तो 5 9 जा कितना हो गया? 45. रिमाइंडर इज 0. देन व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी 0 9. बट इस 0 का वैल्यू इतना है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में. अगर हम लिखेंगे, अगर राइट हैंड साइड में लिखते तो अलग बात, वो 90 समझा जाता. लेकिन 0 9 लिखने का मतलब क्या होता है? सिर्फ 9 लिखने का जो मीनिंग होगा वही सेम होगा. सो इसी वजह से हम इसमें ये डिवाइड करके हम एक्चुअली दिखाते नहीं हैं. समझ में आया आप बात को? तो हम पूरा का पूरा इसको ही ले लेते हैं 45 को. जब हम देखते हैं कि 5 1 जा 5, 1 से भी नहीं जाता कोई एक नंबर, तब हम दोनों को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर करके कितना होता है यहाँ पे? 45 होता है. तो टेबल फिर से गाना मतलब रटा मारना शुरू करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, like that you have to get 5 9 ja 45. So I will write it in this way, not in the previous way, but मैं इसका basic fundamental I want to actually the base I want to, in which base we have solved it. I want to show, I wanted you to show that one also. So because of that we have done the previous method, but in exam you need not to write in that method. You have to use this method only. Okay, that will be enough for understanding by the teacher. Okay, so let us start it in this way. Suppose one more example I am trying to do. 48. I need to divide this 48 by what? Suppose 2. 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2. पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट वन, दोनों को एक साथ नहीं लेंगे. तब तक नहीं लेंगे जब तक ये इससे छोटा अगर होगा तब अलग बात. जैसे यहाँ पे हुआ था, इससे ये छोटा था ना, ये इससे छोटा था, तो इसका मतलब तब हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते डायरेक्ट. लेकिन यहाँ पे तो कर पाएंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो 2 से बड़ा ही है ना ये. सो दैट्स व्हाई आई कैन मूव. सो 2 1 जा 2,
2 2 ज़ा 4, ओ मुझे मिल गया, तो 2 2 ज़ा 4। समझ में आया आपको बात? तो यहाँ पे 0 आएगा, लिखेंगे नहीं और इसको नीचे उतार के लाएंगे। ना 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इसका? 24 विल बी योर आंसर। समझ में आया? तो ऐसे किया जाता है आपका डिवाइड। ओके, 2 डिजिट नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर को डिवाइड ऐसे ही किया जाता है, किसी भी 1 सिंगल डिजिट नंबर से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट? ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सेट you for it, okay, to understand better. Suppose I am going to divide 58 by 2, suppose 2, okay, 58 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो अब फिर से आपको देखना है कि ये जो नंबर होगा पहला वाला, ये इससे बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो हमें इसको पहले कंसिडर करना होगा। तो 2 1 ज़ा 2, इससे बड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। सो 2 2 ज़ा 4, जाए आप लोग जाते रहिए जब तक आपको इससे बड़ा एक नंबर ना मिल जाता। 2 1 ज़ा 2, इससे छोटा ही है, कोई बात नहीं। 2 2 ज़ा 4, अब भी इससे छोटा है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। 2 3 ज़ा 6, आहा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। 2 3 ज़ा 6 होगा, जो इससे हमेशा बड़ा होता है, तो वी विल नॉट राइट हियर 3, हमें छोटा वाला लिखना होगा, जस्ट छोटा वाला, एकदम छोटा वाला नहीं कि हम 2 1 ज़ा 2 लिख दे यहाँ पे। समझ में आया बात? तो नियरेस्ट वाला का यू हैव टू चूज द नियरेस्ट वन, ओके। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो हमें 2 2 ज़ा 4 लिखना है इसमें। 1 विल बी द रिमाइंडर, माइनस करोगे ना यहाँ से 5 को, 5 माइनस 4 यू विल गेट 1, इसको नीचे लाना है, तो 18 हो गया ये। सो अगेन 2 का टेबल अब गई है। 2 9 ज़ा आपको मिलेगा 18। सो आपका आंसर कितना आने वाला है? 29 विल बी योर आंसर। समझ में आया अभी बात? आई होप आई हैव सोल्ड 3 डिफरेंट conditions or different types of problems for this particular question, this particular topic. So I hope you have understood all well, right? So if you still have any doubt, you can watch this video repeatedly, and still if you find any difficulty, then you can write some comment over there in the comment section, so that I can make you understand all concepts regarding it. But in the meantime, I would like to request all my viewers to subscribe my channel if you have not yet subscribed it, and also don't forget to share my videos, okay, with your friends. So now we will directly get into my practice time 3. So my practice time 3, question number 1 का कोई एक हम करके देते हैं, 8 को करके देते हैं, कोई बात नहीं। my practice time 3 का क्वेश्चन नंबर 1 8, व्हाट इज देयर। मैं लास्ट वाला करके दिखाता हूँ, बाकी सब आप लोग इजीली कर पाओगे। 7 से डिवाइड करना है आपको 42 को। अब देखिए ये जो नंबर है ये 7 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना। तब हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके बगल वाला इसके साथ जोड़ लेंगे। कितना होगा ये दोनों जोड़ने के बाद ये 6 नहीं होगा, ये गलती मत कीजिएगा, ये इट विल बिकम व्हाट 42। जोड़ेंगे मतलब प्लस नहीं करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो एक साथ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा 42। अब इसका टेबल याद करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। वो मिल गया हमें, बहुत बढ़िया। 7 6 ज़ा 42। So what will be your answer? Your answer will be 6. I hope you understood, right? So this is the way how you have to solve these type of questions. So remaining question you please solve, okay? Now we will move to question number 2. Question number 2 का कौन सा किया जाए? सपोज मैं यहाँ से 2 करके देता हूँ आपको। So J करके देता हूँ एक तो, और एक कौन सा करें, सपोज लास्ट वाला करके देते हैं L, ओके। सो देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहला वाला J में क्या है, 6 से 72 को हमको डिवाइड करना है हमको।
72 को हमको डिवाइड करना है। अभी पहला इसको पकड़ना है, इज इट ग्रेटर देन दिस नंबर? डेफिनेटली 7 इज मोर देन 6, so I can directly divide this 7 first. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें नहीं लिखना है वो, हमें क्या लिखना है 6 1 जा 6 ही लिखना होगा, क्योंकि वही नज़दीक है 7 के। 1 आएगा माइनस करोगे तो इससे कितना आएगा, ये नीचे आएगा ना बेटा, ये 2 बन जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। अब 12 कब मिलेगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, so 6 2 जा 12, remainder is 0. Now what is your answer? Your answer will be definitely 12. Understood? So in this way you have to write down, solve these questions. Okay, so now let me move to question number 2L. What is there? 4 से 40 को आपको डिवाइड करना है, 4 से 40 को डिवाइड करना है। देखिए ये जो है ये इससे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो 4 1 जा हमें 4 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। तो आप इसको 0 यहाँ पे आएगा, और इससे भी तो 0 ही आता है, तो दो दो जब 0 आता है तो आपको क्या करना है, 4 मतलब आपके पास अभी कितना है, 0 ही तो है ना। सो 4 1 जा 4 नहीं हो पाएगा, 4 0 जा कितना आएगा 0, तो इसका आंसर ऐसा आता है। समझ में आया? लेकिन ये सब करना जब लास्ट में 0 होता है, ये सब नॉर्मली हम करते नहीं है, ये सब करने में क्या होता है, टाइम बहुत चला जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या करते हैं हम, सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके मैं लिखता हूँ इसको, और 4 से आपको डिवाइड करना है किसको बेटा, 40 को डिवाइड करना है। सो 4 1 जा 4 आपको मिल चुका है ना, तो इससे 0 आता है ना, तो ये जो 0 बच गया इसको हम ऊपर ऐसे लिख देते हैं। एक्चुअली ये क्यों आया, इसका मीनिंग है ये। सो दिस विल गिव यू द एब्सोल्युटली करेक्ट आइडिया रिगार्डिंग हाउ वी गॉट 10 हियर। बट एक ये भी है, एक सिंपल सा स्टेप है जो हम ऐसे सोचते हैं कि इस 0 को हम ऊपर ऑलमोस्ट उसी को लिख लिया। तो इसमें अगर 1 0 है तो 1 आएगा, 2 0 है तो 2 आएगा, 3 0 है तो 3 आएगा 0। समझ में आया आपको? तो उसी टाइप से हम करते हैं, समय बचाने के लिए यही टेक्निक सही है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना हो तो यही इसका फंडामेंटल तरीका होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो रिमेनिंग क्वेश्चन you please do by yourself. Okay, if you find any difficulty then you may ask, I will definitely there for you to solve them or make you understand. Okay, very good. Now let me move to question number 3, so which is also a very important question from exam point of view actually, and also from conceptual point of view. Conceptually भी उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो what is there, first read that question केयरफुली। ओके, क्वेश्चन बिना सोचे समझे या बिना पढ़े हम आंसर नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हमको गलती हो जाएगा, हमरा कहीं ना कहीं हमको गलती करना मतलब गलती हो ही जाता है। तो यू हैव टू फर्स्ट केयरफुली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द quotient and the remainder of the following. That means you have to find quotient of the each of the question and also a remainder of also you have to find out. Okay, so you have to find out both quotient and remainder. Okay, let us do question number F. What is there? 3 का F हम करके दिखाते हैं। 3 से 65 को आपको डिवाइड करना है, 3 से 65 को डिवाइड करना है। तो ये जो 6 है पहला वाला, ये इससे बड़ा है कि छोटा है? डेफिनेटली बड़ा है, तो हम कर सकते हैं इसको एक अकेला। 3 1 जा 3 छोटा है, 6 से छोटा है, फिर जाएंगे 3 2 जा 6, हाँ एकदम एग्जैक्टली मिल गया, तो हम तो उसको लिखेंगे ही, तो 0 आएगा, लिखते हम नहीं है उसको, नीचे लेके आएंगे, 5 विल कम डाउन, राइट। उसके बाद सो नॉट 3 1 जा 3, इससे छोटा है, कोई बात नहीं, अब और आगे जाएंगे 3 2 जा 6, हाँ ये 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इससे पहले वाले में जो मिला था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट दैट वन ओनली। सो 3 1 जा 3, ओके, माइनस करोगे तो 2 आएगा।
अब ऊपर से नीचे लाने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो यहीं पे आपको रुक जाना है। 3 से इसमें तो जाएगा नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ये हो गया ये नहीं, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। समझ में आया? आपको ऐसे राउंड नहीं लगाना है, बस समझना है। तो आप क्या करना है, इसका आंसर कैसे लिखोगे आपको लिखना है देयरफॉर quotient equals to how much, this 21, and remainder also you need to find out, right? REMAINDER, रिमाइंडर कितना होगा 2। सो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करना है। तो एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज के वाला मैं करके दिखाता हूँ। के 50 को डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, इजंट इट? सो 3 से ये 5 बड़ा है, तो 3 1 जा 3, इससे छोटा है। 3 2 जा 6, नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये जो 0 है उसको नीचे लाना पड़ेगा। अब 3 का फिर से टेबल याद करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब तक तो छोटा ही मिल रहा है ना, 3 5 जा 15, 20 से छोटा ही है। तो 3 6 जा 18, फिर से छोटा है। अब आगे और जाएंगे, 3 7 जा 21, ओहो इससे बड़ा हो गया, तो 7 बार नहीं जाएगा, 7 से कम जाएगा। तो 7 से कम क्या होता है, 6 होता है ना। सो 3 6 जा 18, माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखना है, देयरफॉर क्वोशिएंट इक्वल्स टू, वो 16 होगा आपका क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर बचेगा will be these 2. So this is how we have to solve these particular questions. Okay, so not very tough questions, these are very simple questions, but you have to concentrate well such that no mistake gets मतलब यहाँ पे कोई ना मिस्टेक ना हो जाए। अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन आएगा बीच में, अगर आप लोगों का ध्यान भटकेगा, तब डेफिनेटली आंसर गलत निकलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको एक क्वेश्चन जब तक ख़त्म ना हो तब तक आपका ध्यान भटकाना नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज देयर, फिल इन द ब्लैंक्स. सो व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर ए, 23 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 28 डिवाइडेड बाय 3, क्वेश्चन नंबर ए में। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वोशिएंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। क्वोशिएंट दैश, एंड यहाँ पे क्या गया लिखा गया है, रिमाइंडर। रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर कितना है पूछा गया है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना आपको। विदाउट डिवीजन हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व इट। 3 से डिवाइड करो, 3 0 जा 0, दैट मीन्स हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहले हम 0 लिखते नहीं है। क्यों, 2 3 से छोटा है, तो हम इसको भी साथ में लेके आएंगे, 8 को भी। तो ये कितना बनेगा, 28। वेरी नाइस, 28। ना ठीक है, टेबल हम गाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ऐसे ऐसे जाके हमें मिलेगा 3 9 जा 27, और 3 10 जा 30, 30 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 3 9 जा ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, 9 है। सो यहाँ से आपको लिखना है, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा, तो यहाँ पे आपको इसको फिल कर देना है। ऐसे रफ में करके देखना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे फिल करना है। कितना आसान है ना। तो ठीक वैसे आप अगर कोई एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएं, तो मान लीजिए हम लास्ट वाला क्वेश्चन करके देते हैं, एल वाला। एल में क्या है, 92 डिवाइडेड बाई 6, 92 डिवाइडेड बाई 6, और इसमें आपको क्वोशिएंट ढूंढना है एंड रिमाइंडर ऑल्सो यू हैव टू। हम अच्छे से लिख नहीं रहे, इसका मतलब कह तो रहे हैं ना, तो आपको समझना होगा। ओके, तो 92 को हमें पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 6 से। सो 9 6 से बड़ा है ना, तो 6 से जाएगा। 6 1 जा 6, इससे छोटा है, और जाएंगे। 6 2 जा 12, बड़ा मिल गया ना 9 से, तो हम और मूव नहीं करेंगे, उससे छोटा वाला 6 1 जा 6 में रहेंगे। तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3,
ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, 32 बनेगा। आप फिर से 6 का टेबल याद गाइए। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30। फिर से छोटा ही है ना अब तक। 6 5 = 30, 6 6 = 36। ओहो बड़ा मिल गया, तो 6 6 जा नहीं जाएगा, उससे कम वाला जाएगा। 6 5 = 30, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑटो लाने के लिए कुछ है ही नहीं, so therefore this will be your what, quotient. So 15 will be your quotient and 2 will be your remainder. So this is how you have to solve the remaining question of this particular question, that means question number 4. So I hope all of you have understood very well regarding how to solve chapter number not chapter number, my practice time 3. So all of you please try to complete today's my practice time 3 within today. So I am giving you enough time after this video. After watching this video carefully, you just make sure that you have completed your my practice time 3. Up to my practice time 3 you have to complete it by today. So till the next part we will discuss in our next video. Okay, so till then wait for the next video, and take care of your health, as well as you don't forget to complete this chapter, this my practice time, your work, remaining work of this my practice time 3. Have a nice day ahead. Thank you.